Okay, what is the formula for gravitation pull or gravitation force? Do you know that? Well, I don't expect you to know that. I'm not asking in that sense. Do you know that? I'm asking, are you aware of that? You No, know what sir. is the formula for discussion? Actually, ninth में पढ़ाया जाएगा तुम्हें. I will teach you in ninth, but I will write the formula now. See, it works like this. The gravitational force between two bodies or two metals is given by this formula, which I'm going to write on the board. The formula is force F is equal to G into mass of the first body into mass of the second body upon d square. D उनके बीच का डिस्टेंस है. ठीक है. Arnav, Yes, sir. let us say you're talking about the gravity of Earth. Now this is gravitational constant. This is 6.67 into 10 to the power I think minus 11 है शायद ये. I think I may be wrong. ऑफहैंड मुझे याद नहीं आ रहा. Though I teach this in class में, but ऑफहैंड मेरे को उसकी पावर वो लग रही है. -11 ही है. Into mass of the Earth. Mass of the Earth is 10 to the 24. Something like 6.4 into 10 to the power 24 kg, 27 gram, 24 kg. Now, let us say this is Earth and there is a photon on the mass on the surface of Earth. So, what is the mass of a photon? Sir, no idea. It is not known. It is so infinitely small that it has not been worked out so far. In fact, scientists have a debate whether it has any mass or not, but definitely it has mass. Why we can say so? Because black holes pull photons towards them. So that means black hole has got in almost infinite force of gravity. Yes, sir. It is only possible, yeah, 10 to the power minus 11, correct. So this is the this correct. So it is what is the value of this? This must be what, some 10 to the power minus 50 or something. We don't know. We don't know. And then whatever distance, let's say distance तो कुछ ही नहीं है, नहीं distance तो हो गई. Distance ये होता है अर्थ का जो रेडियस होता है. अर्थ का रेडियस है 6.6400 किलोमीटर और 6.4 into 10 to the power 6 meters स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 6.4 into 10 to the power 6. अब देखो 6 + 6 एक्सपोनेंटेड पावर वाला चैप्टर याद होगा सबको. ये हो गया Yes, sir. 12 और ये है -12. ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -11 -12 + 24. 6.4 से 6.4 कर गया 67 से. ये सब कट रहा है. यहां से 10 बचा. 10 into 10 to the power -50. सो 10 to the power -49 शायद से कुछ न्यूटन फोर्स आएगा. जीरो लिखते लिखते जीरो खत्म हो जाएंगी. इतना कम फोर्स है वो. Okay, sir. That is the reason it does not have any influence on the photons and the sound energy. Okay, sir. Sound energy का कारण क्या है? Sound energy is what is sound energy? Sound energy is disturbance in air. So what particles are getting affected? Air particles are getting affected. What are air particles? They're the molecules of oxygen, carbon dioxide, and nitrogen. They are so small, so less volume or mass. उनकी कोई वो नहीं है भाई, पूछ नहीं उनकी. Okay, sir. But it was a good question. It was a good question. Chalo. Can we get back to our chapter now, maths? Right. Where is yeah. ये हो गया. कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि
ये वाले क्वेश्चन बचे हैं कुछ. Yes, this one. Right, guys. Let's proceed further from where we had left. Yes, yeah. वंश, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 जो कल मैंने रिस्क और क्लू वाला बताया था, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? वंश, प्रभगुण, नो प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है. आज दोस्तों अभी अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे. इसको बंद कर देता हूँ अभी, इसको बंद कर देता हूँ अभी. इस पे आ जाते हैं. नहीं, नॉट दिस. या ओके. Explain how this figure is trapezium. Which of these two sides are parallel? Guys, question number 10. Tell me how many people know this. I'm sending the line. I am sending the line. Please confirm, sir, I can do it. I know it or I have done it. Whatever it is. Yeah. Question number 10. We have to prove that this is a trapezium. All right. Yes, yes. Any response? Okay. Right. So which figure are they talking about? Yeah. My sentence is how many people are confident they can do this. Confirm So करो यार. which figure are they talking about? First, second, or third? फर्स्ट यार, डेफिनेटली फर्स्ट ही करेंगे यार. और ना तू भी ना कहीं छोटे बच्चों वाली बात करता है. पहले फर्स्ट ही करेंगे ना. आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर नंबर 3.32. देखो लिखा हुआ ऊपर. Actually this question is based on a simple statement. One statement only, and it will be proven. It will be completed. Okay guys, I'm writing this question on the board. Let me see what I'll ask you guys. What this thing you will give. I'm stopping the presentation for a moment. Just see. What is our question? Our question is, oh, before that, I forgot yesterday. What did we decide here? Which chapter are we going to do after this? Sir, we didn't decide. पहले तो डिसाइड कर लेते, क्योंकि आज ये चैप्टर हम आज ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा. हाँ भाई, बता दो मेरे को जल्दी. Sir, science sound chapter. एक मिनट होल्ड कर, मैं मैसेज आता हूँ. क्या? हाँ भाई बताओ जल्दी, तब तक मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 10. ओके. $170, $80, not $70, $80. Sites are MN, KLMN, KLMN. We need to prove how this figure is a trapezium. Which two sides are parallel?
Sia, English grammar, force, history factor 4, sound. बाकी लोग भाई सबको everybody has a right to suggest. Though final call will be taken by me. Priority is always given in CCL to those people who have their exam or test coming up related to that chapter. So I want Prabgun, please share what do you want to do. Rika, Vanch, अर्नव, जिसने नहीं किया सब लोग, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेट वो नहीं है, then you can say sir any chapter will do. सर हमारा मंडे को मैथ्स का एग्जाम है. मंडे मैथ्स है, ओके. Yes. कौन से चैप्टर, कोई चैप्टर मिस आउट है जो कि हमने अब तक नहीं किया? सर हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आ रहा है और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. ठीक है, तो इसमें हाँ, अपने क्लास में कोई नए बच्चे भी, क्योंकि कल की क्लास है अपने पास एक, तो प्रभुगुण है, तस्मिया है, इन लोगों ने नहीं किया तो कराते हैं. एक्सपोनेंट पावर एंड स्क्वायर रूट. एक्सपोनेंट पावर आई थिंक विल बी बेटर, जल्दी Yes. खत्म हो जाएगा एक ही पीरियड में, ठीक है. और उसके बाद मंडे को फिर देन आई विल टेक ए कॉल. शिकाई तो कर तो लिया ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन, नहीं किया? सर नहीं करा, सर हमने सेल करा है, क्या किया? सेल वाला चैप्टर करा है. चलो ओके, एक मिनट होल्ड करो, पहले मेरे को टाइम दो. ओके, फर्स्टली फॉर टुमारो, एक्सपोनेंट पावर डन. एक्सपोनेंट पावर करते हैं कल, एंड कल मैं फटाफट समझा के फॉर्मूले, और उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आर डी शर्मा वगैरह से, पहला. दूसरा है ये जो बात आ रही है हिस्ट्री चैप्टर 4 की. हिस्ट्री चैप्टर 4 कौन सा वाला है? क्योंकि वाकई काफी दिन हो गए हम लोगों ने तो नहीं किया. सर आई थिंक ट्राइब्स वाला है. ट्राइब वाला ये जल्दी Yes, खत्म करा sir. दूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है. उसके बाद नहीं, पर उससे पहले इंग्लिश ग्रामर कुछ करा दूं, ठीक है. सिया मुझे भेज देना क्या कराना है इंग्लिश ग्रामर. ओके सर. Okay, right guys. Now tell me, I'm asking you guys what is the argument that we'll use here. Firstly, is it a trapezium or not? Arshia, is KLMPL trapezium or not? Sir, actually I don't know. All right. May I? Arnav. Okay, Arnav, go ahead. Sir, it is, sir, because in a trapezium, one pair of opposite sides is parallel, and here N and M are N and line N to M and K and L are parallel, because the interior angles of in a parallel, if a transversal cut two parallel lines, then the interior angle forms 180 degree. Good statement, good presentation of thoughts, very good Arnav. Okay, थोड़ा सा improvement हो सकता है, but given your age, I think you have done a very fine job of that. KLMN is a trapezium? How? Yes, it is a trapezium. Prabgun, how? Two sides are parallel. Which two sides? NM and KL are parallel. How can I say they are parallel? The property of parallel lines is, the parallel lines, let's say this is MN and this is KL. The co-interior angles of a parallel line are supplementary. ये मैं कवर किया था. Sia, did I cover this? Co-interior angles are 180 supplementary. Co-interior angles are supplementary. That is to say, angle M and L should be equal to angle M plus angle L should be equal to 180. Are they 180? Let us see. 100 plus 80 is equal to 180. Yes. So these two angles are supplementary and they are co-interior angles or co-consecutive angle or
allied angle. दो नाम, तीन नाम आते हैं इनके, co-interior angles. Co-interior angles. Since they are supplementary, that means this line is parallel to this line, and because they are two sides of a quadrilateral and the opposite sides of a quadrilateral, so this is a trapezium, and these are the sides which are Sia, Jia, Shrika, Prabhugun, भैया, वंश, हाँ, clear सबको? अभिनव, clear? Yes, Sir. sir. Let's go to next question. Yes, sir. Yes, sir. चलो. Yes. Okay. Next he says go to figure 3.33. We have gone to figure 3.3 and we have to find M angle C, measure of angle C, measure of, मतलब कितने, what is the value of angle C? I think AB and DC are equally, तो मजाक कर रहा है, बच्चों वाली बात कर रहा है. Answer in chat box guys. M का मतलब होता है मेजर, क्या वैल्यू है उसकी. चैट बॉक्स में सब लोग पहले तो डी लिख दो, पहले डी लिखो. सर आपने डी लिखो आंसर यार. बोला, मैंने आंसर डाला. हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गलती. मैं तो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11. जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो. ओके, राइट. पोस्ट योर आंसर, पोस्ट योर आंसर. आई थिंक इसमें कोई भी शक नहीं है, कुछ भी शक शुबा नहीं है अभिनव, कि दो लाइन पैरेलल होती हैं अगर, तो उनके जो इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. अभिनव, यस और नो? Yes, sir. अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री तो 180 होंगे ना, तो बी और सी का टोटल कितना होगा? 180. अगर बी 120 है तो सी कितना होगा अभिनव? Sir, what? If I am saying these two angles supplementary, if B is 120, C की वैल्यू क्या होगी? Sir, I don't know. अरे तुमने पिन किया कि नहीं फिगर को, जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ? Yes, sir. क्या ट्रायंगल क्वाड्रेंगल, इसका क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? फिगर 3.33. अभिनव यार ये तो गड़बड़ है ना, क्लास के टाइम पे तुम अटेंशन पे नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा कैसे क्लास से? खाली हाथ जाओगे यहाँ से. Which is the quadrilateral in figure 3.33? Can you see what I am presenting? Yes, sir. Can you see figure 3.33? Yes, sir. What is the name of this triangle, quadrilateral? Sir, trapezium. अरे नेम तो कैसे आता है? ऐसा आता है क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल MNPQ, ऐसा करके आता है. इसका क्या नाम है? Sir, DABC. मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसे बोलता होगा. जनरली लोग ऐसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD. Yes, sir. ओके, सो ही इज सेइंग कि AB और DC पैरेलल हैं, तो एंगल C और एंगल B का टोटल कितना होगा? Sir, can you repeat it? Repeat the question. भाई क्वेश्चन ही रिपीट कराते रहना तुम मेरे से. कितना टाइम वेस्ट करा रहे हो तुम बाकी लोगों का. यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ दैट. आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग एल्स ऑन योर मोबाइल. No, Only sir. such kind of students ask this question because they are busy somewhere else. When they hear their name, they say, "Sir, can you repeat the question?" Why is it so, Abhinav? Hamisha, do you do something else when I'm taking the class? No, sir, I'm active here. And it should not be there. 3 times I've asked you the same question.
if side AB and side CD are parallel, what is the relation between angle B and angle C? If two lines are parallel and there is a transversal, what is the relation between the co-interior angles? प्रभुगुण आप बताओ. प्रभुगुण, दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके को-इंटीरियर एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? सर दे आर सप्लीमेंट्री. दे आर सप्लीमेंट्री. अगर ये 120 है तो ये कितना ऊपर वाला कितना होगा? सर 60. 60. इसमें क्या रॉकेट साइंस है यार? ये तो मेरे ख्याल से अगर वो मंकीज को भी ठीक से ट्रेन करे ना इन प्रॉब्लम्स के लिए, तो शायद वो भी 2-3 साल में सीख जाएंगे. अभी ना, monkeys have been trained to fly aircrafts. नो सर, वो मुझे नहीं पता. मैं बता रहा हूँ तुम्हें. तो यार कम से कम इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अटेंशन. तुम अटेंशन कर ही नहीं, दे ही नहीं रहे हो, तो आई कांट गिव यू एनीथिंग इफ यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टू मी. ऑल राइट गाइस, चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मेनी पीपल कॉन्फिडेंट? क्वेश्चन नंबर 12. या okay, find the measure of P and S. P and S का मेजर निकालना है दोस्तों. अगेन इट्स अ चाइल्ड्स प्ले. बच्चों का खेल है ये. इट्स अ चाइल्ड्स प्ले नाउ. क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया कि वो पैरेलल है, SP and RQ, तो को इंटीरियर एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री. एंड आई एम सरप्राइज only Sia has written D. लिखा. व्हाट यार अबाउट ऊपर सबने अर्नव? लिख दिया. हाँ, ऊपर हमने ऊपर ऊपर लिख लिखा दिया क्या? ओके, ऊपर लिख दिया. सॉरी. ओके, दैट मींस यू गाइस हैव गॉट इट. ओके चलो भाई, आंसर. पंच का आंसर आया, अक्षय का आया, जिया, शिका. वेल डन, वेल डन, वेल डन. प्रभुगुण लेफ्ट, अभिनव लेफ्ट. अभी तक बचा हुआ है अभिनव. यार अभिनव और थोड़ा सा तू मेहनत कर लेगा तो भाई तेरी लाइफ सुधर जाएगी. विद मी एज योर मेंटर यू कैन अचीव अ लॉट. बट तुम लेने वाले बनोगे तभी तो मैं कुछ दे पाऊंगा लाइफ में. ऋत्विक चंदेल, शुड आई एक्सप्लेन? Yes, sir. Okay, now pay attention, Abhinav, Ritwik Chandel. Look at the figure. What is the name of this quadrilateral, Ritwik Chandel? The trapezium. नहीं बेटा, when I say name, I am not asking. When I say what type, then you have to say trapezium rectangle. But नाम तो उसका वही है, PQRS. Okay. PQRS. Now angle Q की क्या वैल्यू दी है ऋत्विक? Sir, 130 degree. 130 डिग्री. एंड R की क्या वैल्यू दोस्त? Sir, 90 degree. और ये भी हमें पता है कि अगर RQ और SP पैरेलल हैं तो S और R सप्लीमेंट्री, P and Q सप्लीमेंट्री. राइट हो? Yes, sir. तो भाई अगर ये 90 है R, तो S कितना होगा? Sir, 90. वेल डन. और अगर ये Q 130 तो P कितना होगा? 50. वेल डन. राइट. सबका ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज गॉट इट राइट गाइस. वेल डन. वंश, अर्शिया, अर्नव, विद ये 130 सिया ने कैसे लिख दिया यार? हद है. वो गलती से Okay. लिख दिया. ठीक है, प्रभुगुण. Okay. चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर and I hope to close this chapter today. Yes.
Okay, guys, I'm just presenting. Share this. Okay. ऐसे क्वेश्चन ना बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, बहुत कंफ्यूजिंग तो होते ही है। देखो, इतनी बात हमारी हुई थी जब मैंने बताया तुम लोगों को कि सबसे घटिया सा कोऑर्डिनेटर होता है वो जो जनरल कोऑर्डिनेटर होता है, उसकी कोई कोई ब्यूटी नहीं होती, कोई इसके अंदर वो नहीं होता, बस इतना है कि इट हैज गॉट 4 वर्टिसेस 4 साइड्स, एंगल सम प्रॉपर्टी 360 है, 2 डायगोनल, बस और कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं। देन कम्स योर ट्रेपेजियम व्हिच हैज गॉट अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, दो साइड्स पैरेलल है और दो उनके जो जो पैरेलल साइड्स हैं उनके एंगल सप्लीमेंट्री। Then comes parallelogram, so which is very beautiful quadrilateral. It's got two sides, two pairs, equal and parallel. Diagonals bisect each other. पाँच दुनिया भर की कहानी. And then I said up to kite, all quadrilaterals are also the parallelograms. So rectangle is a parallelogram with one angle at 90 degree. Square is a parallelogram in which adjacent sides are equal. Rhombus is a parallelogram in which adjacent sides are equal. स्क्वायर में मैंने एक बात बोलनी है, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और काइट की तो हमने बात ही की थी, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, लेट अस टेक इट सीरियसली। राइट, आई विल सेंड द लाइन देयर ओनली, देयर आफ्टर दैट ओनली प्लीज सेंड द आंसर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, पीपल मे गेट इट रॉन्ग आल्सो। सो एक्सरसाइज 3.4, exercise 3.4, question one number 1, it is true false TF। सर आप शेयर कर रहे हैं क्या स्क्रीन? कर रहा हूँ, अभी करूंगा, अभी किया नहीं मैं। And we will start with part 1. I am sharing now. Okay guys, go ahead. All rectangles are squares, true or false? जल्दी करो। सर आंसर देना था या डन लिखना दे दो था? आंसर, इसमें आंसर है, अब तो आंसर है, अब आंसर है, जल्दी। अभी डायरेक्ट आंसर दे देना। अच्छा, डायरेक्ट आंसर देना वंश। फॉल्स है भाई ये। ट्रायंगल और स्क्वायर के अंदर बहुत बड़ा फर्क ये है कि स्क्वायर की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल नहीं होता। रेक्टेंगल लेंथ बड़ी होती है और ब्रेड्थ छोटी होती है। ओके, स्ट्रेट अवे वी गो टू नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज पार्ट, एक मिनट होल्ड करना, मैं पार्ट चेंज कर दूंगा, इट विल नॉट बी द नेक्स्ट। डी, बहुत अच्छे, जिया, वंश, रितिका, अर्शिया, प्रभगुण, सिया, अभिनव, बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, हर स्क्वायर के अंदर दो पैरेलल एंड इक्वल साइड्स होती हैं, अपोजिट पैरेलल एंड इक्वल साइड। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पार्ट बी, ऑल rhombuses are parallelograms, true or false? Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, I've sent a worksheet on revision group. Sir, आपने कल वो वर्कशीट भेजी थी, उसमें मेरे को 6 क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सेम जो मैंने भेजी थी। Yes, sir. Okay. Right guys, it is true. All rhombuses are parallelograms. पार्ट सी के साथ मैंने लाइन भी डाल दी साथ ही। ओके, क्वेश्चन था ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses
and also rectangles. It is true. Rectangle की क्या definition है? A parallelogram which has got one angle is 90 degree. Square में तो होता है. Square rhombus की क्या definition है? A parallelogram in which adjacent sides are equal. Square में तो होती है. True. True. Okay, guys. मेरे ख्याल से you guys are getting it now. Last question मैं ले रहा हूँ, and I'm sharing this question. This is a very easy question, Arnav. I'll just explain this to you and everybody else. Guys, see, question number 6 है. Draw two lines of 7 centimeter which bisect each other at right angle. पहली बात तो दो लाइनें हैं, सेम लेंथ सर की आपकी हैं. स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है. थैंक यू. अर्नव, दो लाइनें हैं दोस्त और सेम लेंथ की हैं, ठीक है, एंड दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री. तो ये तो डायगोनल्स हो गए ना किसी साइड के, ठीक है भाई. यस सर. कौन सी साइड, कौन सी फिगर ऐसी होती है इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं? एक्चुअली तो रेक्टेंगल के भी, रेक्टेंगल के भी, स्क्वायर रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के नहीं, रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों के होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को. बाइसेक्ट करते हैं पर 90 डिग्री पे नहीं करते. रोम्बस के अंदर दोनों के दोनों डायगोनल अलग अलग लेंथ के होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ये लंबा होता है छोटा. सिर्फ एक स्क्वायर है जिसके अंदर की डायगोनल्स सेम लेंथ के होते हैं और 90 डिग्री. तो ये जो बनेगा आपका क्या बनेगा अर्नव? सर स्क्वायर. स्क्वायर. सर रोम्बस नहीं हो सकता? रोम्बस में होता है, रोम्बस में दोनों साइड एक छोटा होता है एक छोटा होता है एक बड़ा होता है. ओके सर. चलो guys, let's call it a day. I end this chapter with this. Tomorrow exponent and power का रिवीजन, और मंडे बीच में 2 क्लासेस होंगी जो रिवीजन क्लासेस, उसमें मैथ्स का ही रिवीजन कराऊंगा खासकर इस चैप्टर का और एक्सपोनेंट पावर का. एंड देन मंडे आई वांट टू गिव इट वन डे एटलीस्ट टू द ग्रामर यार. सो अच्छा सुनो, मंडे को क्लास नहीं रखूंगा मैं. आई एम गोइंग आउट समवेयर मंडे. वी विल नॉट हैव ए क्लास. इफ पॉसिबल वी विल हैव ए रिवीजन क्लास, but Monday I will not take class. We meet next on Tuesday. Okay. Tuesday I suggest we do one day of grammar and then let's do history and then बाकी साइंस पे आ जाएंगे वापस, ठीक है Roger? Okay guys, चलो bye. See you guys. We meet tomorrow. Bye. बाय Bye. सर.